question number 7. Find the sum of face value and place value of 3 in number. Number is given. So first of all, we will write the number. Write down your number. Then we will write place value on this. Places. Sorry, we will write places on this. Ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. Okay. Then we will write the place value and face value. What they have asked, find the sum of face value and place value of 3. 3 एक ही है इसमें, तो इस 3 की हमें face value भी लिखनी है and place value भी लिखनी है. Okay. So first of all we'll write the place value. Place value of 3. What is the place value? It is on 1000, so it is 3000. Face value of 3. फेस वैल्यू क्या होती है? सेम नंबर होता है, सो एज इट इज हम उसको लिख देते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सम. इट मीन्स हमें प्लस करना है, ऐड करना है. सो उनका सम क्या आएगा? सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. मार्क the periods and write the expanded notation in Indian system. So we have to write first period. मार्क करना पीरियड. पीरियड मतलब जो हम प्लेसेस लिखते हैं. ओके. एंड देन वी हैव टू राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन. सो फर्स्ट पार्ट इज थ्री 05489. What is the question? Mark the period. First we will mark it period. Ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. Period mark हो गए. Now we will write its expanded form. Expanded form कैसे होती है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 इसका क्या पीरियड है? लैख. 3 लाख प्लस आगे 0 है, सो 0 को हम एज इट इज लिख देंगे. तो इसके साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. 10,000 में लिखने की जरूरत है. 0 को 0 ही लिख दो बस. प्लस 5 का पीरियड क्या है? 1000 प्लस आगे है 4 का पीरियड है 100 प्लस 8 का पीरियड है 10 प्लस 9 का है 1. ओके. दिस इज इन वर्ड्स. हमने अभी इसको वर्ड्स में लिख दिया है. अभी हम फिगर्स में लिखेंगे इसको. फिगर्स में कैसे लिखेंगे? ये दिस इज द वन वे टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ वी विल राइट इन सेकेंड फॉर्म. सेकेंड वे के साथ कैसे लिखेंगे? 3 लाख. लाख में हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 5 zeros. So we will write it like this. 3 lakh plus 0 को इग्नोर कर सकते हैं हम, इसलिए नो नीड टू राइट 0. 0 को छोड़ दीजिए. 5,000. 1000 में कितनी होती है? 3 zeros.
plus 400. 100 means 2 zeros. Next is tens. 8 टेंस मतलब 0. 10 में एक 0 होती है तो 0 एक आ जाएगी, 80 हो जाएगा. 9 ones. 9 ones मतलब 1. 9 ones है 9. So this is your answer. ये होगी आपकी expanded form. Okay. So let's try one more part. एक और एग्जाम्पल करते हैं. 6 8 4 0 8. First of all, we will mark period. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. The same way we will follow. 6 lakh plus 8 10,000. ऐसे ही लिखेंगे 10,000 plus 4,000 plus 0 plus 0 plus 8 ones. अंडरस्टैंड. जहां पर 0 आ गया वहां आपको साथ में लिखने की जरूरत नहीं है. वट एवर पीरियड इट फॉलोज. ओके. 0 को सिंपल 0 लिख दो. एंड इन सेकेंड वे 6 lakh. lakh में 5 zeros. So put 5 zeros. 8 10. 10 means एक 0. 1000 means 3 zeros. Plus 4,000. 0 और 0 को इग्नोर करेंगे. प्लस 8 ones means 8. ये हमारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट 8 8 3 2 9 3. Write the periods on this. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. So now start writing 8 lakh, 8 10,000, 3,000, 200, 9 tens, 3 ones. अभी इसमें कोई 0 नहीं था, सो इसलिए हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है. वी हैव टू राइट ऑल द डिजिट्स. ओके. नेक्स्ट वी विल राइट इन द सेकेंड वे. 8 lakh. lakh means 5 zeros. 8 10. 10 means 1 0. 1000 means 3 zeros. 3,000. 3,000 means 3 zeros. 200. 9 tens. Tens means 1 0. 3 ones. 3 ones means 3 into 1. 3. 3 ones are 3. So this is our C part. Let's do one more part. एक और करते हैं. 706953. Write the period on this. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. So what is the answer? 7 lakh plus 0, 6,000 plus 900 plus
5 tens प्लस 3 ones। दूसरे फॉर्म में लिखो इसको 7 lakh, lakh मीन्स 5 zeros, प्लस 6,000, 1000 मीन्स 3 zeros, 900 2 zeros, 5 tens मतलब 1 zero, 3 ones मतलब 1, 3 ones are 3. So this is your D part. Question number 11 is write in short form in Indian system. So A part दिया हुआ उन्होंने, okay. So this is our A part. Write in short form in Indian system. Short form में लिखने के लिए क्या करना है हमें, और है ये इंडियन सिस्टम है, बस इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है. So first of all we will write the period. We will write period ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. Okay, so what is this? 1 2 3 4 5 zeros means lakh, 3 lakh. तो ये lakh के नीचे आ जाएगा 3, ओनली 3, क्योंकि lakh है लिखा हुआ ऊपर, zeros का 5 zeros का मतलब होता है lakh. So we will not write lakh again, we have already mentioned period. 4 1 0 1 0 means 10, 40,000 4 10,000, तो यहाँ आएगा 4 10,000, 5,000, ये 1000 है तो इसके नीचे आएगा 5, 600 तो इसके नीचे आएगा 6, 80 8 10 7, तो ये आएगा यहाँ पर. ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, सो हम यहाँ पे कॉमास लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म. Short form in Indian system. Now let's do the second part. चलिए जी. So the first step is to mark the period. You write the period first. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. Okay. So 1 2 3 4 5, 5 zeros means lakh, 8 lakh, lakh के नीचे 8 लिख दो. 1 2 3 4, 4 0, 4 zeros आती है 10,000 में, 6 10 60,000, तो 6 आएगा यहाँ पे. 1000 7,000, तो 1000 के नीचे आएगा 7. आ गया 100, 100 में होते डबल जीरो, डबल जीरो वाला नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है, तो इट मीन्स यहाँ क्या लगेगा 0. इफ एनी नंबर इज नॉट देयर, एनी नंबर इज मिसिंग, तो उसकी जगह क्या लगेगा 0. आपको नंबर ऑफ जीरोस देखनी है कि 2 जीरो है तो 100 होता है, तो 100 वाला डबल जीरो वाला नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे. तो नेक्स्ट है 70, 70 मतलब 10, 10 में एक जीरो होती है तो 10 के अंतर आएगा 7, तो इसके नीचे 70 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, जीरोस हटा देनी है. 7 7 आएगा वंस के नीचे, देन राइट कॉमर्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. सेम एक और करते हैं. सी पार्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, हमने लिखने हैं पीरियड्स. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख. ओके,
सो 7,000, 7 के साथ कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस मीन्स लैख, तो ये आएगा 7 के नीचे। प्लस 8, 8 मतलब 8 के साथ कोई जीरो नहीं है, मतलब ये आएगा वंस में, जिसके साथ कोई जीरो नहीं होती, सिंगल डिजिट होता है, दैट कम्स अंडर वंस, तो ये आएगा वंस के नीचे। 7 था, लैख हो गया, 8 हो गया, बीच में कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, तो ये सारे खाली हैं, इट मीन्स इनके नीचे जीरो लगा दो, जीरो हो गए, ये आएगा आपका आंसर। ओके, अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? एक्सप्लेन इट अगेन। लेसर देन और ग्रेटर देन क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेसर देन, नहीं समझ लो ये, लेसर देन एंड इक्वल्स टू, ये तीन होते हैं हमारे पास साइन। ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास ये साइन, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो ओपन है और राइट हैंड साइड आपका क्लोज है। ठीक है, ये दोनों हैंड देख लेने ऐसे, विच इज क्लोज विच इज ओपन। सो लेस देन मींस राइट हैंड साइड आपका ओपन रहेगा, आपको राइट हैंड साइड की तरफ आपका राइट हैंड ओपन रहना चाहिए और लेफ्ट हैंड जो है आपका क्लोज रहेगा। इक्वल्स टू साइन इजी है, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन। अंडरस्टैंड? गॉट इट? आपको ये विद नेम, यू नीड टू लर्न दी सिंबल्स विद नेम ओनली, विदाउट नेम लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डू इन योर बुक ओनली एंड इट इज योर होमवर्क। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। second question is, second question also you will do in book. Write the greatest and smallest, greatest and smallest 6 digit numbers. Yes, yes, using all given digits, जो आपको digits given है उन्हीं से आपने numbers लिखने हैं। ओके, यस। सेकंड क्वेश्चन बुक में करना है, मैंने अभी बोला है फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इन बुक ओनली। डिजिट्स कौन से हैं मेरे पास? दे हैव गिवन द डिजिट्स ए पार्ट 7 5 3 2 1 8, this is our first digit, first क्वेश्चन जिसमें डिजिट मेंशन है। सो व्हाट विल डू, विल राइट फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, बड़ा है 8, देन 7, देन 5, देन 3, देन 2, देन 1। अभी इसको एज इट इज नहीं छोड़ना है, व्हाट विल डू, वी विल मार्क द कॉमास आल्सो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। नाउ दिस इज कॉल्ड नंबर। अगर आप एक एक के पीछे ऐसे ऐसे कॉमा लगा देंगे तो दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये फिर से डिजिट बन जाएगी। हर डिजिट के पीछे कॉमा नहीं लगाना है, सो ये गलत हो जाएगा। सो कॉमा विल बी ओनली अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, मीन्स देर विल बी ओनली 3 कॉमास। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बहुत इजी होता है, इसको पीछे से लिख लो, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, so this is your smallest number. नेक्स्ट फिर है हमारे पास एक और पार्ट है, 4 8 3
चलिए हम इसको ग्रेटर नंबर लिखेंगे। पहले ग्रेटर में सबसे पहले आ रहा है 8, देन 4, 3, 2, 1, 0। ओके, कॉमर्स डाल दो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। दिस इज डन। नाउ वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 8। जैसे मैंने बोला कि हम पीछे से स्टार्ट करके लिख देंगे स्मॉलेस्ट, बट इन दिस केस देर इज लिटिल बिट चेंज। 0 से स्टार्ट नहीं होता कभी भी नंबर, सो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को इंटरचेंज कर देंगे। 1 पहले लिखेंगे और 0 बाद में लिख देंगे। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। 0 से नंबर कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, ये अपने ध्यान में रखना है। ओके, अंडरस्टैंड। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 0 से दोबारा नंबर स्टार्ट नहीं होगा, तो 0 और दूसरे नंबर के साथ इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। सो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, 2 पार्ट रहते हैं। Yes. So this question you will do in your copy. Which has greater value, 87456 1 rupee notes और 87,456 रुपीज। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो ये है 87। सोल्यूशन लिखना है, उन्होंने बोला कौन सा किसकी वैल्यू ज्यादा है। 87456, ये इतने 1 रुपए के नोट है, 1 रुपए के नोट्स हैं इतने सारे। और 87,000, 87,000 456 रुपीस, 56 रुपीस कितना बन गया, 87 मीन्स 87,456, ये बन गया। ऊपर हमारे पास ये क्या दिया हुआ, 87,456। इसका आंसर भी क्या आ गया, 87,456। तो वैल्यू कहते किसकी ग्रेटर है, पहले ये दोनों लिख लो। इक्वल आई दोनों की, दोनों का हम साइन लगा देंगे इक्वल। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे करना है। सुनील फादर अर्न्स 1,96,580 रुपीज एनुअली। एनुअली का मीनिंग होता है 1 ईयर में, 1 साल में कितने रुपीज कमाते हैं, 1,96,580 रुपीज सुनील के पापा अर्न करते हैं। सुनील्स फ्रेंड्स फादर, सुनील के फ्रेंड के पापा कितना अर्न करते हैं, 99,580 रुपीज पर ईयर। ये भी 1 साल में कितना कमाते हैं, 99,580 रुपीज। हमें इसको पहले न्यूमरल्स में लिखना है, ये जो लिखा है ये ऑलरेडी नंबर में गिवन है, नंबर है यहाँ पे, हमें वर्ड्स में गिवन है, इसको हम लिखेंगे न्यूमरल में। देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, whose father gets more money in 1 year, किसके फादर को 1 साल में ज्यादा मनी मिलती है। सो सबसे पहले हम दोनों की लिख लेंगे मनी, किसको कितनी मिल रही है 1 ईयर में। सो लेट्स स्टार्ट। सुनील्स फादर earns in 1 year, 1 साल में कितना, ₹1,96,580। सुनील्स फ्रेंड्स फादर earns in 1 year कितना, यहां से लिख लेते हैं हम, दोबारा वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 99,000, 99,500
80 रुपीज, 80 रुपीज मतलब 80, 80 रुपीज। एक बार फिर से चेक कर लो, 99,580, 99,580 रुपीज। तो ये हमारा कौन ले रहा है? सुनील के फ्रेंड के पापा। ओके, एक साल में। तो अब क्वेश्चन क्या है? हुज फादर गेट्स मोर मनी? किसके पापा ज्यादा मनी अर्न करते हैं एक साल में? अभी देखो, दोनों नंबर्स को लिख लो यहाँ पे। बॉक्स बना लो। इस क्वेश्चन को करने का एक इजी वे है, आप डिजिट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, इधर 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5, इधर 5 डिजिट है। इट मीन्स ये वाला ग्रेटर है। अंडरस्टैंड? तो ग्रेटर के लिए साइन हमारा आएगा ये वाला। अगर दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ डिजिट है, इधर भी 6 है तो इधर भी 6 है, तो आपको फर्स्ट डिजिट जो है वो चेक करना होता है कि फर्स्ट वाला डिजिट सेम है या ग्रेटर है। अंडरस्टैंड? तो किसके पापा को ज्यादा मनी मिलती है? Sunil's father. So we will write here, Sunil's father gets more money in 1 year. सुनील के पापा को एक साल में ज्यादा मनी मिलती है। चलो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिंबल्स। असेंडिंग ऑर्डर होता है गोइंग अप, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट। पहले छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे नंबर होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एंड इट इज रिटन यूजिंग सिंबल्स, हमें सिंबल भी यूज करना है। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? ये चेक करो पहले, ये देखो कितने डिजिट है यहाँ पे, कॉमा से पहले 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। तो ये मतलब सिंगल डिजिट है, तो ये सबसे पहले आएगा 8,888। उसके बाद कौन सा आएगा? देखो ये सारे 2 डिजिट है, कॉमा से पहले 45, 66, 44। पहले कौन सा आएगा? 44, 44, देन 45। कितना करना? ओए, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन पंजाबी? ओके, आई हैव लेफ्ट अ स्पेस हेयर, मैंने स्पेस छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स लगाएंगे। ओके, सो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, ये नंबर छोटा है, तो छोटे के लिए लेसर देन वाला साइन लगाएंगे, इसके साइड बंद रहेगा, तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ ओपन रहेगा साइन, तो ये सारे सिंबल ऐसे लगेंगे। ओके, समझ में आ गया कैसे लगाना है सिंबल? नेक्स्ट, बी पार्ट। चलो जी, सो let's see here which will come, which is the smallest here। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट, तो ये दोनों बाद में आएंगे। पहले इन दोनों में देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 29। सो सबसे पहले आएगा 29,375 लेस देन 7,7,675
इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 and 4, 3 स्मॉलेस्ट है। 3, 4, 6, 5, 2, 7, लास्ट में आएगा 4, 4, 9, 8, 2, 7। गॉट इट? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कमिंग डाउन मतलब नीचे आना, सबसे बड़ा सबसे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है, ऐसे होता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिंबल्स, इसमें भी हमने सिंबल्स लगाने हैं। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू इन कॉपी, कॉपी में करना ये क्वेश्चन। यस, चलो जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। सो हमें इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ग्रेटेस्ट, टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट है, सबसे पहले कौन सा? 96। तो 96,984। 96 के बाद ग्रेटर कौन सा? 66, देन 57, देन 38। सिंबल कौन सा लगेगा? ग्रेटर साइड पे, ये ग्रेटर है, ये ऐसे लगेगा सिंबल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 84,288, 74,936, 34,823, 11,507। So this is your question number 3। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था हमें। Now let's start question number 4. Question number 4 is write the numbers from 24250, 24,250 to 24,950। ये दो नंबर्स गिवन है, 24,250, 24,950। मतलब यहां से लेके यहां तक नंबर्स लिखने हैं इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बट देर इज वन कंडीशन ऑफ बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में काउंट करके लिखने हैं। क्या मीनिंग है पहले समझ लो, बोर्ड की तरफ देख लो, फिर बाद में लिखना। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपके पास 24,250। तो यहां से लेके आपको कहां तक लिखना है? 950 तक। 24 तो सेम रहेगा, ठीक है, 24,000 के बाद 250 है बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। 250 के बाद कौन सा आता है 100 काउंट करके? 250 है, ठीक है, 250। 250 में हंड्रेड्स के बाद कितना आएगा? 350। सीधा 100 का गैप, 200 के बाद कितना आता है? 100 का गैप हो तो 200 में 100 प्लस करें तो कितना आएगा? 300। तो वही बोला उन्होंने बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में काउंट करना है। 250 में अगर 100 ऐड करें तो कितना आएगा?
350, तो 350, 350 में 100 ऐड करें तो कितना आएगा? 450, 450 में ऐड करेंगे तो 550, 550 में ऐड करेंगे 650 में ऐड करो, 750 में ऐड करो, 850 में ऐड करो, तो 950, ये रहा क्वेश्चन। 950 तक हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव रिटन ऑल द नंबर्स, बट नाउ ऑल दीज नंबर्स, इन नंबर्स को हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आएगा तो ये सेम ही आ जाएगा, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आ जाएगा। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट से स्टार्ट कर लो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।